Good afternoon, friends. Uh, we are meeting today to interact on something very important, and I understand there couldn't have been a better time and better weather to have this kind of informal interaction. Uh, to interact with the friends from media, Minister of State uh, in PMO, and Honorable Minister of State DAPRG, uh, Department of Personal Training, Science and Technology. Uh, Along with him, we also have Secretary DAPRG, DARPG, and Secretary Personal Welfare, Sri V. Srinivasji. With him, we have Secretary IMB, Sri Apurva Chandraji, and Secretary Post, Sri Vinit Pandey. We also have with us Himanshu Pathak. Then we have Special Secretary from Defense and Additional Secretary RPG. We welcome you all, sir, and I also take this opportunity to welcome our friends from media. Why I said this is, there would not have been a better time and better weather to discuss. A very important Swachhata 2.0 campaign began during Dussehra Navratri festival. That was on 2nd of October, marking the birth anniversary of Father of the Nation, and will be concluding on National Unity Day, that is 31st October. It has been a whole of government approach. All departments, ministries have contributed very effectively, very intensively. So we have with us all concerned. They would be sharing how this has progressed during the last 3 weeks and how we propose to move forward. So without taking too much of a time, I would request Secretary DARPG and Sri V. Srinivasji to begin the proceedings. Dr. Jiten Singh ji, my senior colleague, Sri Apurva Chandra ji, Secretary Information Broadcasting, Sri Vinit Pandey ji, Secretary Post, Sri Himanshu Pathak ji, Secretary Air, Satendra Prakash ji, Mayank Agarwal ji, my colleagues from Ministry of Defence, Amarnath ji, and at the outset, a very happy Deepavali to all of you. And let me thank the Honorable Minister for giving us time for immediately one day after Deepavali for an informal press briefing on Special Campaign 2.0. The Honorable Prime Minister has directed that a Special Campaign 2.0 should be conducted from October 2nd to October 31st to institutionalize Swachhata and reduce pendency in government. In pursuance of these directions, the Department of Administrative Reforms and Public Grievances as the nodal department had a preparatory phase from September 15 to 30th in which a portal was operationalized, and the URL of the portal has been shared with you. Targets were determined by each ministry on the portal, and nodal officers were appointed for each department. And the Honorable Prime Minister directed this time that the campaign shall be conducted in the remotest corners of India. So when we started the campaign, we received almost 90,000 cleanliness campaign sites, and also a huge number of public grievances running into lakhs, which were to be disposed as part of the campaign. Also, some of the rules and procedures were to be eased, which were taken up in addition to regular secretariat work of members of parliament references and cabinet notes, which will be disposed in this period. 3 weeks into the campaign, I am happy to inform you that the Special Campaign 2.0 has been conducted in the length and breadth of India, from Itanagar in Arunachal Pradesh to Bikaner in Rajasthan, from Leh in Ladakh to Kanyakumari. The impact has been seen in every government office and establishment. And we have shared with you in our press statement
the list of best practices that have been identified. The Honorable Prime Minister has issued tweets on this subject. You would have seen more than 10,000 tweets that have been issued from the social media handles of various ministries and departments. Nearly 70 press information bureau statements have been issued, and you would find that the Twitter analytics show that more than 1 billion impressions about the special campaign 2.0 has been seen. What we have observed are tremendous simplification and cleaning up in office spaces. We have also observed a huge amount of scrap that has been disposed. The Honorable Minister had taken a round of DARPG and identified how records have to be weeded, records of historical value which have to be transferred to National Archives for posterity, and also how electronic records have to be closed. Further, we have identified new and innovative ways of enhancement of office spaces and also for improving the overall working environment in offices. So you have yoga centers coming up in Department of Land Resources, Department of Posts has created a parcel cafe. So with me are today secretaries who have taken this campaign forward. The Department of Posts stands at the forefront of implementation in terms of taking up 17,000 cleanliness campaign sites in all the regional and sub-regional post offices. The Department of Agriculture, Research and Education has taken up Parthenium and plastic-free farms in 750 Krishi Vigyan Kendras, and we have the Department of Defense which has disposed scrap amounting to more than 217 crores. So what we find are incredible numbers, sir. More than 37 lakh square feet of space freed, 255 crores of revenue that has been earned from scrap disposal, 40.5 lakh files have been reviewed, weeded out and closed, 3.5 lakh public grievances have been closed, and more than 5,500 MPs references have been closed. So this has been the overall progress in 3 weeks, and as we take the campaign forward, I look forward to your continued support. जन भागीदारी के और स्वच्छता के इस अभियान में विभाग सर्वप्रथम अपने आप को सम्मिलित होकर गौरवान्वित महसूस करता है, और जो प्रोत्साहन हमें मिला है मंत्रालय से और हर तरफ से जो सुझाव आए उन सबको देखते हुए प्रथम चरण के बाद जब हम द्वितीय चरण में आए और जब इस समय ये कार्यक्रम चल रहा है तो उससे हमें बहुत सारी सीख मिली, और जिसको हम एक जन भागीदारी एक आंदोलन के रूप में देश के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। और आप सबको विदित है कि डाक विभाग का नेटवर्क बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, और आज जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है हम लगभग 18,000 लोकेशंस हमने इस चरण में कवर किया है, और जो उपलब्धियाँ भी सेक्रेटरी DRPG ने बताई उसमें थोड़ी सहभागिता या थोड़ा योगदान हमारे कर्मचारियों, और सबसे ज़्यादा जो हमारे ग्राहक हैं, जो पोस्ट ऑफिस है वो एक कम्युनिटी सेंटर है, वो एक टॉकिंग पॉइंट है। तो ये मैसेज धीरे धीरे नीचे परकोलेट हो रहा है, और इस अवसर के लिए हम आभारी हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत गांव में बसता है, तो जब तक हम ये स्वच्छता कैंपेन गांव-गांव तक किसानों के खेत तक नहीं पहुंचा पाएंगे तब तक हम इसमें सफल इतना आसानी से नहीं हो पाएंगे। तो इसी दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन जितने भी संस्थानें हैं पूरे भारत, वो सभी संस्थान स्वच्छता कैंपेन 2.0 के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा 732 कृषि विज्ञान केंद्र, 113 रिसर्च इंस्टीट्यूट और 74 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जहाँ एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है, ये सारे संस्थान इस कैंपेन के साथ जुड़े हुए हैं। आज तक हमने पिछले 3 हफ्ते में करीब 3 लाख लोगों से कांटेक्ट कर पाए हैं स्वच्छता कैंपेन के बारे में, उनके अवेयरनेस बढ़ाने के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, कैसे स्वच्छता को आगे बढ़ाया जाए। और उनमें से 30,000 से भी ज़्यादा स्कूली छात्र हैं, और हम 1229 गांव को
उसके साथ मिल करके काम कर रहे हैं। उनमें से 619 को सर हम एडॉप्ट कर चुके हैं। एडॉप्ट मतलब हम हर एक हफ्ते हमारे कोई ना कोई वैज्ञानिक या तो हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वहाँ जाते हैं, गाँव वाले के साथ चर्चा करते हैं, उनके जो भी स्वच्छता के मामले में समस्या है वो हम सुनते हैं। उनका समाधान के लिए कहीं जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है या जानकारी की ज़रूरत है वो हम दे रहे हैं। 619 गाँव को हम मिलकर एडॉप्ट कर चुके हैं। एक क्या मैं आप सबको बताना चाहूँगा, एक जो बड़ा अच्छा कार्यक्रम हम लोगों ने अपनाया है जिसको हम कहते हैं OS to वेल्थ, अवशेष से संपदा। तो जितने भी एग्रीकल्चर वेस्ट है जैसे क्रॉप रेसिड्यूज है, फुलारी है, इसको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए तो इसमें मिट्टी का गुणवत्ता बढ़ाया जा सकता है, फसल का उपजाऊ क्षमता बढ़ाया जा सकता है और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। क्योंकि ये जितने भी क्रॉप रेसिड्यूज हैं इनके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटाशियम होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। तो हम फार्मिंग कंपोस्ट का माध्यम से या तो क्रॉप वेस्ट रिसाइकलिंग का माध्यम से, जिसके लिए कई सारे मशीन आज उपलब्ध है, जिसमें हैप्पी सीडर हैं, बेलर हैं, टार्बो हैप्पी सीडर हैं, ये सब हम या तो हमारा जो प्रोजेक्ट्स है उसके माध्यम से देते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके हम देते हैं, ताकि कोई भी क्रॉप रेसिड्यूज आप जो है कि जलाया ना जाए, उनको वेस्ट ना किया जाए, उससे जो है कि वेल्थ बनाया जाए। और ये कार्यक्रम हमारे सारे कृषि विज्ञान केंद्र जितने भी हैं हर जगह इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसके नतीजा जो है कि बड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है कि फार्मर्स इसके बारे में जानकारी सबको प्राप्त हो चुका है। और आज के दिन में ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ाने के लिए, नेचुरल फार्मिंग को आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत अच्छा इस दिशा में एक जो है कि हम पहल कर चुके हैं। तो आज तक ये कैंपेन बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है कि आपने पहल किया और हम सबको एकत्रित होकर के इसके बारे में चर्चा सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स करीब 6000 साइट्स से सेलेक्ट किया हुआ, 5974। रेलवे डिपार्टमेंट ने, रेलवे मिनिस्ट्री ने ओवर 7000 साइट्स रेलवे स्टेशन पे किया है जहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। होम मिनिस्ट्री का करीब 5000 के आसपास साइट्स है। वैसे ही सिविल एविएशन ने टॉयलेट मॉडर्नाइजेशन और बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, जिसको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में भी रखा, जो हम PIB की तरफ से आप लोगों से फॉर्मली शेयर करेंगे। और इस संदर्भ में जैसा श्री वी श्रीनिवास जी ने बताया हमें, मीडिया हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दे हैव बीन all along partnered with us, and we from PIB, we have tried to facilitate whatever information and other things you had desired, to give further details and to give his remarks and guidance how we can take it forward. We have with us Secretary INB Sri Apurva Chandra ji. I'll request him to share his thoughts. आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह जी और इधर उपस्थित सभी मित्र, मीडिया के मित्र, जब ये स्पेशल कैंपेन 2.0 लॉन्च हो रहा था तो मैंने श्रीनिवास से पूछा कि भाई तुम्हारा तो स्पेशल कैंपेन 1.0 ही इतना बढ़िया चला था, अब तुम्हारे पास काम ऐसा कौन सा है कि जो स्पेशल कैंपेन 2.0 में करोगे। परंतु जैसा उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार जो मार्गदर्शन दिया कि हमें दिल्ली के बाहर और पूरे भारत में हमें फोकस करना है कि हमें कहाँ कहाँ पर, और जैसा कि इन्होंने बताया, श्रीनिवास ने भी बताया, श्री पांडे जी ने भी बताया, मेयर के सचिव ने बताया कि इस बार हमारा कैंपेन दिल्ली के बाहर और सब सुदूर सारे जगहों पे पहुंचा और उसके परिणाम अब हमें देखने को मिलते हैं कि किस तरह से जगह जगह पे ये कैंपेन इस बार चालू हुआ। और जैसा श्रीनिवास ने बताया कि 200 करोड़ से अधिक, 250 करोड़ से अधिक का स्क्रैप, इतने लाखों स्क्वायर फीट की ओपन स्पेस हमें मुहैया हुई है इस स्पेशल कैंपेन के अंतर्गत। जो मीडिया के हमारे बंधु हैं उनसे मेरा अनुरोध यही रहेगा कि आप लोग जो काम अच्छा हुआ है वो भी दिखाएं, और अगर कहीं पर आपको लगता है कि और सुधार की आवश्यकता है तो वो भी हमारे को अवगत कराएं, जिससे कि हम उस पर फोकस करके उसको भी हम आगे से ठीक कर सकें। क्योंकि केवल अच्छा काम ही नहीं, जहाँ क्योंकि अभी कैंपेन चल रहा है और ये कैंपेन केवल इसी बात का नहीं, ये तो एक जो है हमारा सबका प्रयास है कि हम हमेशा अपने ऑफिस को सुधार करते रहें। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हमारे को आपका सहयोग चाहिए होगा। INB की तरफ से मैं आपको एक आध चीज़ जो आप लोग क्योंकि सब मीडिया के हैं तो उस संदर्भ में एक बताता हूँ कि जो हमने खुद देखा इस बार
आप लोगों के जो एडवर्टाइजमेंट हम निकालते हैं, जो कि हमारा DVP जो पहले था और BOC और अब CBC है, अब एक ऐड निकलता है तो लगभग 100-150 पेपर्स में निकलता है, और उसके सबकी हम फिजिकल कॉपी मंगाते हैं, सबका बिल मंगाते हैं, और उसके जो बिल होता है तो पास होने जाता है तो कई बार ट्रॉली में लेके जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े बिल हो जाते हैं कि ट्रॉली में जाते हैं। और ये बिल हमारे यहाँ CBC के ऑफिस में दिल्ली में पिछले 12 वर्षों के लिए आज तक पड़े हुए, क्योंकि उसकी छटनी कभी नहीं हुई। तो अब हमने इस बार के स्पेशल कैंपेन 2.0 में ये काम अपने हाथ में लिया, और इन बिलों की छटनी जो पिछले 10 साल से, जो कि हमारे को कोई भी बिल 2 साल से अधिक नहीं रखना चाहिए, जो हमारे पास 12 साल से पड़े हुए हैं, उसकी छटनी तो हम कर ही रहे हैं। पर साथ ही पैसे तो दे दिए नहीं, मेरा मतलब है प्रक्रिया है, केवल जो है छटनी करना कागज का ही नहीं, ये प्रक्रिया में भी हम सुधार करें, जिसमें परमानेंट सुधार आए, और इसको हम ई-बिलिंग सिस्टम में ले, जिससे कि आगे ये कागज की प्रक्रिया ही बंद हो जाए। तो स्पेशल कैंपेन 2.0 में केवल यही नहीं है कि हम जो है केवल स्वच्छता करें और अपने कागज की छटनी करें। हमारा उद्देश्य ये भी है कि हम अपने जो हमारी व्यवस्था है उसमें भी सुधार लाएं, जिस पे हम काम कर रहे हैं, और इससे निश्चित ही हमारे मीडिया जो ग्रुप्स हैं उनको आगे लाभ होगा जब हम इसको ई-बिलिंग पे लेकर जाएंगे। और दूसरा उदाहरण मैं जो एक बताना चाहूँगा कि हमारा जो SRFTI कोलकाता है, जो मैंने खुद देखा कि वहाँ पर एक जंक यार्ड था, पर इस बार जो है क्योंकि सत्यजीत रे की 150वीं इस बार जो है तो वी आर सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स, तो जो है वहाँ पर उन्होंने उसको खाली किया और वहाँ पर उसका बहुत सुंदर एक म्यूजियम बनाया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि कोई कोलकाता में आपकी अगर कोई टीम हो वो जाके वहाँ पर उसका जो है विजुअल दे और उसको अपने उस पर प्रसारित करें। जैसे जब भी ये कैंपेन शुरू हुआ है, मीडिया से काफ़ी बढ़ चढ़ के भागीदारी हुई है। इस बार भी प्रसार भारती का सहयोग हमें मिला। हमारे साथ प्रसार भारती के CEO और DG दूरदर्शन श्री मयंक अग्रवाल जी भी हैं, और इन्होंने जो प्रचार का कार्य किया, उसके साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, वो चाहे यहाँ पे राष्ट्रीय राजधानी में स्थित हो या विभिन्न प्रांतों की राजधानी में हो या जिला स्तर पे, सबका सहयोग मिल रहा है। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि ये सिर्फ हिंदी और इंग्लिश भाषा के ही पत्रकार हमारे बीच नहीं है, बल्कि भारत के अन्य भाषाओं के भी पत्रकार एक बड़ी संख्या में है। तो इस जन आंदोलन का जो सरकारी विभागों में भी उसी क्रम में चल रहा है, काफ़ी खुशी मिल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें एक फिल्म दिखानी थी आप लोगों को, लेकिन अभी थोड़ा ब्राइट लाइट है, शायद नहीं हो। और आज जैसा सबको पता है सूर्य ग्रहण है, तो जब तक हम लोग बाकी अपनी चर्चा करेंगे तब तक शायद प्रकाश इतनी कम हो जाए कि हम लोग फिल्म का स्क्रीनिंग आपके लिए कर सकें। कुछ बातें जो शायद ना आई हो, जो उससे हट करके भी हो। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जो आज प्रक्रिया चल रही है, जिसका उल्लेख श्रीनिवास जी कर रहे हैं, ये उस क्रम का हिस्सा है जिसका प्रारंभ 15 अगस्त 2014 को हुआ था। तो जो भी अभियान होता है, जो कैंपेन होता है हमारा, इट इज़ एक्चुअली एन ओकेजन और अ मीन्स ऑफ रीइटरेशन आवरसेल्व्स, रीट्रीटिंग आवरसेल्व्स टू अ पर्टिकुलर कॉज, कि हम किसी लक्ष्य को, किसी आदर्श को लेकर के अपना संकल्प पुनः समर्पित करते हैं, प्रतिबद्धता प्रकट करते हैं। ये उसका एक अवसर रहता है। लेकिन जो ये सिलसिला है, ये प्रोसेस है, निरंतर जारी है। अब इसमें अंतर क्या है? मैं इसको 3 भाग में समझता हूँ कि संक्षेप में इसको अगर रखा जाए। सन 2014 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था स्वच्छता का। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया कि इसका क्या अर्थ है। उन्होंने वहाँ पर व्याख्या करके बताया भी कि इस प्रकार के शौचालय निर्माणित किए जाएंगे, विशेषकर कन्याओं के लिए, बेटियों के लिए, एंड राइटली सो, क्योंकि उसको प्राथमिकता दी जाए। और हमने देखा कि बहुत सारे स्कूलों, पाठशालाओं में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, तो साल भर के भीतर लगभग 4 लाख से अधिक पाठशालाओं में, स्कूलों में इस प्रकार के शौचालय निर्माणित हुए। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि शायद अपने घर में आगे पीछे रख रखाव में सफाई करने को ही स्वच्छता कहते हैं। और मुझे भली बात याद है कि नॉर्थ ब्लॉक में अभी ऑनलाइन नहीं था ये
अभ्यास भी नहीं था और वो तब उतना संस्कृति भी नहीं थी, कल्चर भी नहीं था। तो जब लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी कुर्सियाँ थी जिनकी टांगें 3 थी, ऐसे मेज़ थे जो एक टांग पर खड़े थे, क्योंकि सरकार में एक प्रकार की ऐसी मानसिकता थी कि नई चीज़ खरीदी जाए उसके लिए तो कर्मचारी भी हैं, आपके पास पानी पीना है तो ग्लास आप टेबल तक पहुंचाने के लिए टेंडर बात है, लेकिन ग्लास टूट जाए तो उसको उठाने के लिए किसी को वेतन अब तक कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है। तो ये मैं तब भी कहा करता था कि बड़ी विडंबना है जो हमें इस अभ्यास से सीखने को मिल रही। और हमने देखा कि कई ऐसे कक्ष, कई ऐसे कमरे थे जो भरे पड़े थे टूटे टेबलों, टूटे कुर्सियों से। उनको जब साफ किया गया तो बहुत सारी वहाँ पर बैठने की जगह मिली। मैं केवल नॉर्थ, क्योंकि उस समय हम थोड़ा सीमित स्तर पर कर रहे थे क्योंकि हमारा दायरा उस समय नॉर्थ पर, और लगभग 60,000 फाइलें केवल नॉर्थ ब्लॉक से ऐसी थी जिन पर धूल जम चुकी थी, 60-70 वर्षों से पड़ी थी, कोई उनको पढ़ता नहीं था, कि इसका औचित्य नहीं था, लेकिन पढ़ी है तो उठाने का तो कोई कर्मचारी है नहीं। फाइल लाने के लिए चपरासी रखा है आपने, लेकिन जो फाइल ज़ाया हो जाए उसको फेंकने के लिए तो आपने किसी को मनोनीत किया नहीं है। सो नोबडी इज डिजिग्नेटेड टू परफॉर्म दैट जॉब। तो जब उसको उठाया और हमने कर्मचारियों को ये समझाया, विशेषकर अपनी जो महिला हमारी साथी थी, कि आपको शायद ये समझ नहीं आया कि इस तरह की जब फाइल आप हैंडल करके घर जाते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं या खाना परोसते हैं तो ना मालूम कितने कीटाणु और जरासीम साथ में पिला देते हैं। तो उससे एक जागरूकता हुई। तो आई थिंक दिस वॉज बिगिनिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू कल्चर which was introduced by Prime Minister Modi and this government was reflecting that. उसके बाद जब हम स्वच्छता के दूसरे फेज़ में आए, और वो फेज़ था जो पिछले साल श्रीनिवास जी को जिम्मेवारी मिली, जिसको उन्होंने स्वच्छता 1.0 की संज्ञा दी। उसमें हमें ध्यान में आया कि कई ऐसे कॉरिडोर भी थे। अभी तक तो हम कमरों की सफाई कर रहे थे, कई ऐसे कॉरिडोर थे दिल्ली में जो केवल इसलिए बंद थे कि वहाँ जंग पड़ा हुआ था। तो जंग उठाने की ना किसी के पास फुर्सत थी, ना सरकार ने किसी को मनोनीत किया था। एंड वी एक्चुअली वॉक डाउन इवन साउथ ब्लॉक, द प्राइम लोकेशन ऑफ द नेशनल कैपिटल, पूरा का पूरा कॉरिडोर बंद पड़ा। उसको जब वहाँ से निकाला गया सारा सामान, तो वहाँ पर एक सुंदर लाइब्रेरी भी बनी, बैठने की जगह भी बनी। और जैसे 2014 के अनुभव में आया था कि 3 टांग की कुर्सियां और 1 टांग का मेज़ भी होता है, 2021 में अनुभव में आया कि बिना माउस के कंप्यूटर भी चलता है और बिना स्क्रीन के लैपटॉप भी होता है, यानी जो जहां टूटा वहीं पड़ा हुआ। तो इस बार फिर विचार आया कि इसकी भी सफाई का कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरह ध्यान देना चाहिए। तो पहली बार अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट वॉज मेड टू remove what gained the dubious nomenclature of electronic scrap. Usually the electronic word is very fashionably used for anything which is fast moving. So here we had a scrap which was called electronic scrap. और उसको जब हटा के हम चूँकि हर हफ्ते श्रीनिवास जी के साथ बैठ कर के जायज़ा लेते थे, तो पहली बार लगा कि 10 करोड़, दूसरी बार रोज, तो हम चौंक गए कि ये आमदनी का तो जरिया सोचा नहीं था कभी, तो ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहाँ से होने लगा। हम तो सफाई कर रहे थे, तो सफाई करने के हमें पैसे कौन देने लगा। तो बाद में जब थोड़ा सा गहराई में गए तो पता चला कि दिस स्क्रैप वाज सेलेबल, एंड एट द एंड ऑफ 1 month अक्टूबर 2021 वी हैड अर्न 62 करोड़ विच वॉज डिपॉजिटेड इन स्टेट एक्चुअली, ये पिछली बार। और बाद में कुछ और ऐसी जगह भी खोज में आई जहाँ पे इसकी असेंबली की जाती थी, वो आपको हम वैसे बता देंगे आपके खोजी जर्नलिज्म के लिए। तो वहाँ पर बैठे हुए थे ऐसे सज्जन जो टूटा हुआ स्क्रीन लेने को तैयार थे, टूटा हुआ माउस लेने को तैयार थे, हर चीज़। और ये बात फिर बाद में मेरे ध्यान में आई, तो मैंने एक शिविर लगाया यहाँ पर कोटमठ के जो नॉर्थ ब्लॉक के बाहर महिला कर्मचारियों को, उनको कहा कभी देखिए इस तरह का, ये तो आप घर में भी ले सकते हैं इस तरह का। एंड एक्चुअली दे वर वेरी मच इम्प्रेस बाय दैट, बिकॉज साहब हमारे यहाँ तो बच्चे आते हैं 3 मोबाइल तो फेंके हुए घर में, चौथा मोबाइल ले आते हैं, पिछला वहीं फेंक देते हैं। So in fact, the second part of it, what I'm trying to say is, as I said, in the first phase, it introduced a new work culture in the working of the government under Prime Minister Modi. It also started affecting our social behavior. जो हमने कार्यालय में, दफ्तरों के कॉरिडोर में काम किया था, उसका प्रभाव हमारे घर में हो सकता है, उसका लाभ भी हो सकता है, उसकी उपयोगिता भी हो सकती है, ये ध्यान में आई। और बहुत सारी हमारी महिला कर्मचारियों ने बाद में कहा कि साहब हम 4-4, 5-5 मोबाइल वो लेकर के आए,
और तीसरा जब ये फेज़ आया है 2022 का, इसमें वो पिछला तो लालच आ ही गया था कि तो वी वर ऑलवेज आइंग ऑन दी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप कितना होता है, जिसका भी श्रीनिवास जी ने बताया कि 252 करोड़ रुपया 4 हफ्ते में इन्होंने कमा लिया और अभी 1 हफ्ता और बाकी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आंकड़ा 30-35 करोड़ तक 265 करोड़ तक जा सकता है। लेकिन एक और चीज़ क्या आई, जब हम 2014 शुरू हुए थे तो हमारा, क्योंकि 2002 कैंपेन ऑल्सो टुक अप द क्लियरिंग ऑफ द फाइल्स, क्लियरिंग ऑफ द पेंडिंग इश्यूज, clearing of the replies of the correspondence to the ministries, to the secretariats, because पहले में तो केवल फिजिकल सफाई था। सेकेंड फेज में सफाई जो पेंडिंग कागज दस्तावेज थे उनकी, तो उसको जब हमने थर्ड फेज में एक्सटेंड किया, अब की बार जो चल रहा है, तो एक नई चित्र, बड़ी विचित्र बात, और जो शायद एक मुझे लगता है सुखद भी है कि दैट ऑल्सो स्पीक्स ऑफ द पेस विद विच दिस गवर्नमेंट हैज मूव्ड। हमें ना केवल फाइलें क्लियर करने वाली मिली, बल्कि ऑनलाइन फाइलें भी क्लियर करने वाली मिली। सो वी हैव एक्चुअली ग्रेजुएट कम ऑफ एज इवन इन ऑनलाइन वर्किंग, क्योंकि तब हम ऑनलाइन में जस्ट इंट्रोड्यूस हो रहे थे 2014 में, पूरी तरह हुए भी नहीं थे। तो ज़्यादातर जो फाइलें डिफंक्ट हो चुकी थी या जो डिस्पोज ऑफ करने लायक थी, या पूरी तरह ही या तो आर्काइव में भेजनी या उसको कहीं डंप करना है, तो वो अधिकतर पेपर फाइल है, अब वो ऑनलाइन। सो द फर्स्ट फाइल आई थिंक आई ओनली डिड दैट वाज 2015। तो 2015 की एक फाइल हमें मिली, जिसका श्रीनिवास जी से मेरे कहा इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आपने ऑनलाइन किसी को सर्कुलर भेजा था बैंक जी ने सत्येंद्र जी के माध्यम से कि हम 100 लोग आज इस परिसर में इकट्ठा होंगे। अब ये ऑनलाइन फाइल चलेगी, जैसे आपको भी आई होगी। अब इसको 100 साल रखने तक फायदा कोई नहीं, तो हमने वो ऑनलाइन फाइलें भी इस बार डिस्पोज आउट की हैं। सो वी कैन, दिस इज समथिंग वी कैन शो केस एंड टेल अदर्स, बिकॉज दिस कैंपेन इज गोइंग अक्रॉस द कंट्री। सो एक तो ये रेवेन्यू सोर्स भी बना है, ये सिर्फ सफाई अभियान नहीं है। वी हैव, आई एम ग्लैड दैट दिस टीम हैज बीन एबल टू ऑफर टू द गवर्नमेंट अ न्यू सोर्स ऑफ स्टेट एक्सचेकर रेवेन्यू। तीसरा, जिसकी बात हमेशा प्रधानमंत्री कहा करते थे, आई थिंक द जेंटलमैन सिटिंग ऑन द राइट एंड लेफ्ट ऑफ मी represent what the Prime Minister has been reiterating, the whole of government approach. And in fact, there are only few of them. The campaign has extended to all the departments, all the ministries, all the states, all the UTs. And I would rather dare add, this campaign is not only whole of government, it's a whole of government plus whole of nation. Because it has started involving even the civil society groups. जगह जगह पर जहाँ जहाँ ये अभियान हुआ है, और जैसे आपका अभी समुद्र का अभियान था, वो भी होल ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू हुआ। नोडल एजेंसी उसकी डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज थी, लेकिन सब बाकी भी जुड़े हुए थे। तो उसमें इतनी बढ़ चढ़ करके हुआ, बिकॉज वी हैड प्लान इट अप टू 16 सितंबर, लेकिन 16 सितंबर तक जुहू बीच में जब हम पहले दिन रात को पहुंचे, हमने कहा कि सबको फ़ोन करके बुला लीजिए सेलिब्रिटीज़ को, तो वहाँ जो रहते हैं वहाँ पे जिन के घर है। तो सनी जी को फ़ोन किया, सनी देओल को, बोले साहब वो तो ठीक है, लेकिन कल सफाई किस बात की करेगा, सारा कोई साफ कर गए आपके लोग अभी तक। सो द होल सोसाइटी, सो इट इज़ होल ऑफ नेशन, नाउ ऑल्सो इन्वॉल्विंग होल ऑफ गवर्नमेंट। Innovation does not necessarily mean science. That's what I keep telling in science and technology. Even a non-scientist can be an innovator. No two words in English mean the same. तो अक्सर वो सोचते हैं कि इनोवेशन का मतलब है कोई IT का काम करना। हमारे यहाँ जैसे प्लास्टिक साफ करना था, ये मैंने लिस्ट आई थी और मैंने सोचा आपके लिए रोचक होगी, हम इसको इसकी प्रति भी दे देंगे। रेलवे मिनिस्ट्री ने बेंगलुरु में प्लास्टिक की बोतलों को फेंकने के बजाय उसकी एक मूर्ति बना दी। तो देखिए हमारे कर्मचारियों अधिकारियों की कितनी प्रतिभा है, और उसको भी अवसर मिलना प्रकट होने का। बट दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द वेस्ट नीड नॉट बी, माइट बी कन्वर्टेड टू वेल्थ, जैसे अभी पाठक जी कह रहे थे, लेकिन वेल्थ में ना हो तो किसी और काम भी आ सकता है, किसी कला के काम भी आ सकता है। यानी ये कुछ एक ऐसे प्रयोग किए गए
तो शायद बहुत ज़्यादा कल्पना में आसानी से नहीं आते। प्लास्टिक फ्री फॉर्म का तो इन्होंने उल्लेख किया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनका एक कॉरिडोर खाली करवाया आपने, और उन्होंने वहाँ एक प्रदर्शनी सी लगाई है, आरण्य आरण्य, उसमें कुछ फॉरेस्ट के कुछ वो दिखा। तो एक उन्होंने कॉरिडोर जो भरा पड़ा था जंग से, उसको निकाल के एक प्रदर्शनी का एक मकाम बना दिया। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने उनका जो पुराने कोल फील्ड्स हैं जो जंक में तब्दील हो जाते हैं, वहाँ गार्डन बना दिया। तो वी हैव नेम्ड इट गार्बेज टू गार्डन। और पोस्ट डिपार्टमेंट ने जो आपका एक बड़ा सराहनीय कार्य किया कि डाकखानों में अभी भी, अब तो खैर लोग चिट्ठियाँ लिखने बंद हो गए, तो मैं उसमें खैर आपको दोष नहीं देता, लेकिन जब लिखते थे तो ऐसा होता था कि जहाँ भी आप पैर रखो डाकखाने में, कहीं बड़ा छोटा, तो कहीं एक ढेर लगा होता था लिफाफे का, कहीं दूसरा ढेर कहीं, और छतों पर भी ऐसा ही था। छतों पर कोई पुराना पार्सल का वो बैग पड़ा हो रहता था, कुछ जिसको आप कह सकते हैं कि पोस्टल जंक, तो उसको सभी के सभी छतों से, रूफ टॉप से हटा करके एक इन्होंने अभियान शुरू किया वहाँ सोलर प्लांट लगाने का। तो मैं ये कहने का ये तात्पर्य था कि दिस कैंपेन, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईच एंड एवरीबडी इन दिस कैंपेन हैज आल्सो जनरेटेड सम काइंड ऑफ इनोवेटिव थिंकिंग व्हिच इज आल्सो पार्ट ऑफ द कल्चर दिस गवर्नमेंट हैज स्टार्ट टू फॉलो अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी। लगेगी वहाँ नहीं लगेगी चैनल में, क्योंकि हमारे अक्सर बाइट लगाते नहीं हो, क्योंकि हमारा ना कोई ऐसा प्रोफाइल है, ना कोई स्कैंडल ना स्कैम। तो इसलिए मित्र भाव में आपको कहता हूँ, खबर मैं शंभू जी से कह रहा था ये कि इन 4 weeks द गवर्नमेंट हैज एडेड 252 crore टू द स्टेट एक्चुअली जस्ट फ्रॉम जंक। दैट इज वन न्यू विच विल बी पिक्ड अप। आपके एडिटर उसको उठाएंगे, तो थोड़ी देर में भी सब एडिटर लगा कहेंगे। दूसरी जो उठेगी कि 37.19 लाख स्क्वायर फीट ऑफ एरिया गॉट वेकेटेड, जिसमें एक पूरा का पूरा मॉल बन सकता था, पूरे शास्त्री भवन बन सकता था। ये 2-3 चीज़ें अगर मुझे लग रहा है कि हाईलाइट होगी तो इससे क्या होगा कि लोगों में भी रुचि जागेगी। और ऑफ कोर्स 40 लाख फाइल्स एंड 3 करोड़ पब्लिक ग्रीवेंसेस, वो भी आता है आंकड़ा, समटाइम्स मैटर्स, बट ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि 254.21 in the last 4 weeks, and we still have 6 more days to go. 4 weeks are just about 3.5 weeks, and 37.19 lakh square feet of area. तो मुझे लग रहा है कि अगर हम, जैसे ठीक कहा INB सेक्रेटरी साहब ने भी, पूर्व चंद्रा जी ने, कि मीडिया का इसमें बड़ा हमें सहयोग भी चाहिए, रहा भी है, और कुछ एक एक्चुअली मेन स्ट्रीम मीडिया में कई बार इस तरह की खबर को उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती, जिसके लिए आपका आभार प्रकट करना है कि आप किसी न किसी तरीके से इस अभियान को भी कहीं ना कहीं स्पेस देते रहे हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आपकी और ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगी, तो मे बी इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम न्यूज़ ऑल्सो। तो थैंक यू वेरी मच। और अब धीरे धीरे बड़ी सुखद बात है कि स्टेट गवर्नमेंट्स में भी ये कल्चर बन रहा है। इनफैक्ट मैनी ऑफ देम आर वाइंग विद ईच अदर, पर्टिकुलरली हमारे कई राजभवन भी इसमें बड़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हुए, पर्टिकुलरली राजभवन ऑफ तेलंगाना और राजनिवास ऑफ पुडुचेरी, वो दोनों एक ही हैं वहाँ पे, राजभवन लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने स्वयं इस अभियान में हिस्सा लिया। इनफैक्ट आई मस्ट एडमिट कि हमारा जो सागर स्वच्छता अभियान था, वो हमने जब औपचारिक तौर पर शुरू किया, उससे पहले ही राज्यपाल महोदय ने वहाँ पर पौंडीचेरी क्लीनिंग शुरू कर दी थी। पौंडीचेरी बिकेम अ शो केस एग्जाम्पल ऑफ बीच क्लीनिंग। इन्हीं का विभाग कर रहा है। धीरे धीरे ये सहयोग दे करके सभी प्रदेशों को, राज्य सरकारों को, राज्य सेक्रेटरीज को ऑनलाइन लाने के लिए मदद कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो ऑनलाइन आ रहे हैं तो खुद ब खुद भी फाइलों का डिस्पोजल होता जा रहा है। और उसमें एक आई थिंक द टेल स्टोरी इज दैट जम्मू कश्मीर में इन्होंने वो
जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू फाइलें मूव करती 200 करोड़ रुपया खर्चा आता था, वो इन्होंने बचा के दिया है सिर्फ ऑनलाइन करने से। So now they use both the state capitals. Some of the officers sit here, some of the officers sit there, but they don't have to transport the files. तो पहले क्या रहता था कि एक महीना उनको ब्रेक लगती थी फाइलें मूव करने में और 200 करोड़ रुपया लगता था। तो फॉर दैट ऑल्सो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट मिस्टर श्रीनिवास एंड हिज टीम। किलो फाइल बनानी पड़ती थी, तो उसके सबके से हस्ताक्षर लेने पड़ते, नहीं बना तो विजिलेंस वाले बीच में आ जाते थे। हमने उसका सरलीकरण किया है। अगेन थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, इस सरकार ने, और जो कि ये पर्सोनल मिनिस्ट्री के भी यहाँ पर सारे अधिकारी लोग बैठे हैं, अभी तक लगभग 16,000 नियम कानून पिछले समाप्त कर दिए जो बाधा बनते थे जो इस काम में। और नोडल एजेंसी चूँकि ARPG है, दे हैव द लिबर्टी टू डिस्पोज ऑफ एंड देन रिपोर्ट इन अ फाइल। तो उस तरह की प्रक्रिया को भी सरलीकरण हुआ। वो वैसे वो जनरल भी हो रहा है। मैं इनको कहूँगा श्रीनिवास जी को कि इनका विभाग है, देयर आर ऑलरेडी रूल्स इन प्लेस कि कितने साल के बाद किस फाइल को बंद कर दिया जाए, या कुछ ऐसी फाइल है जैसे फर्स्ट फाइनेंशियल कमीशन रिपोर्ट है जो शायद सदाबहार रहेगी, तो उसको सदाबहार ड्रॉयर में डाल दिया जाए, जो मतलब उस तरह का है। कोई ऐसी है कि फॉर लेगेसी रीजन आर्काइव में भेजी जाएगी तो उसको आर्काइव में भेजी जाए। इस तरह के रूल्स वर ऑलरेडी इन प्लेस, लेकिन शायद उतना वक्त और इतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, शायद वो प्राथमिकता में था नहीं। यू कुड जस्ट टेल दी द टाइमलाइंस ड्रॉन फॉर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर और पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट, इसके अंतर्गत फाइल्स रिटेंशन का गाइडलाइंस दिए हुए हैं। कैटेगरी ए फाइल्स वो हैं जो परमानेंट रिकॉर्ड है। अगर कोई कैटेगरी ए फाइल 25 साल से ज़्यादा वक्त के लिए है तो ये नेशनल आर्काइव्स में ट्रांसफ़र होगा। आदरणीय मंत्री जी ने जब हमारा विभाग में राउंड लिया था तो 1908 के डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ मिले थे जो हमें अभी ट्रांसफ़र करने बाकी थे। कंप्लेंट्स ऑफ क्लर्क्स अगेंस्ट ICS ऑफिसर्स इन द ब्रिटिश राज। वो आपका जो छोटा कॉलम आता है उसके लिए वो था कि क्लर्कों ने अफसरों के खिलाफ रिपोर्टें लिखनी शुरू की। तो एक कलेक्टर ने डाला साहब चिट्ठी लिखी है 1908 में कि साहब इसमें गाइडलाइन दिया जाए, इनका क्या निवारण करना है, कि इसकी पिटाई करनी कि उसकी करनी कि क्या करना है। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग लेटर, बट इट वाज नो लॉन्गर रेलेवेंट, तो उसको हमने डिसोल्व कर। मिनिस्ट्रीज में आज की तारीख में है कुछ मंत्रालय जो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स चलाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय हैं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हैं, गृह मंत्रालय हैं, DOPT के कुछ सेक्शंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर हैं, इनमें फिजिकल फाइल्स चलते हैं। नॉन क्लासिफाइड फाइल्स लगभग 90% एंड अबाउ के तारीख तक पहुँचते हैं। आप सोचेंगे 4 लाख ई फाइल्स रहते थे 2018 में और आज 31 लाख ई फाइल्स ऑपरेशन। जो आपने जो कल्चर में बदलाव इन्होंने करवाया है कि जैसे कह रहे हैं कॉन्फिडेंस रख देते थे, लेकिन टाइम टू टाइम देखना कि वो इज इट स्टिल कंटिन्यूज टू बी रेलेवेंट टू बी केप्ट इन दैट सेक्शन, वो कोई नहीं कर रहा था। नोबडी वाज रिविजिटिंग। यानी एक फाइल को कॉन्फिडेंशियल ड्रॉयर में रखा तो वो सदा वहीं बंद रहेगी, वो कॉन्फिडेंशियल होगी। तो उसको इन्होंने अब सबको एक बार दोबारा देखा, उससे ये डिस्पोजल हुआ। उनके जॉइंट सेक्रेटरी, फिरंगी पानी इज़ अ कैफेटेरिया, आप आज जाके विजिट करें। इट इज़ लाइक अ 5-स्टार कैफेटेरिया, बुद्धा का स्टैचू है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ ग्रेट सोलेस। वो स्क्रैप यार्ड था अगर आप 1 साल पहले जाके देखें। वो जो एक आंगन निकाल के लाए हम प्रथम चरण में, तो आपके प्रश्न के संदर्भ में ये है कि बिल्डिंग के अंदर ही जो स्पेस पहले वेस्टेज था, पुराने कूलर पड़े थे, वहाँ पे बैठने की व्यवस्था हो गई है और वो हमने उसको डाक आंगन का नाम दिया है, जिसमें हम आप अपने सारे कुछ आयोजन होते हैं तो आप आमंत्रित हैं, आप उसको विजिट करें। और वहाँ पे हमने कैफेटेरिया का भी अरेंजमेंट किया है। अब इसी से जो एक्सपीरियंस मिला तो द्वितीय चरण में एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कोलकाता GPO में पार्सल पैकेजिंग एक यूनिट बनाया। तो जब तक कस्टमर वेट कर रहा है उसके बैठने की व्यवस्था करके वहाँ पे हमने पुराने फर्नीचर जो कि डिस्पोजल में जा रहे थे उनको रिफर्बिश करके और वहाँ पे क्रिएटिव टच दे करके, अभी कलकत्ता का जिक्र आया था तो जब आप जाएं तो आप इस पोस्ट ऑफिस को ज़रूर देखें। और वहाँ लोग बैठ रहे हैं, ना सिर्फ कस्टमर बैठ रहे हैं बट आसपास के जो यंगस्टर्स हैं किसी और भी काम से आ रहे हैं वो भी वहाँ बैठते हैं। तो ये जो हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस मिल रहे थे, हमें खुद भी नहीं पता था कि इस अभियान में हम जुड़ेंगे तो ये चीज़ें निकल के आएंगी। अब हमको इसको बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ जैसा संभव होगा उसको हम सर्कुलेट करेंगे।
लेडीज़ के लिए स्पेशल टॉयलेट की सुविधा हो, या अभी क्या है कि पोस्ट ऑफिस में जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि भाई वो चिट्ठियों मट्ठियों का काम तो कम हो रहा है, लेकिन पोस्ट ऑफिस डोर स्टेप आधार इनेबलमेंट का, आधार एनरोलमेंट का, आपका पेंशन का, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट का, तो कस्टमर जो ये आ रहे हैं उनके बैठने के लिए हमने जो ये रिक्लेम करके और रीऑर्गेनाइज कर दिया सो दैट दे गेट ए बेटर प्लेस टू सिट। तो स्पेस यूटिलाइजेशन का जो एक अवेयरनेस एक आया है, तो अब बाकी सर्कल्स, बाकी डिविजन्स भी उसको कॉपी कर रहे हैं एंड वी आर होपफुल कि बाय द एंड ऑफ दिस कैंपेन एंड सब्सिक्वेंटली आल्सो वी विल हैव मोर सक्सेस स्टोरीज टू शेयर विद यू। एनडीए 1 में एपीजे कलाम, एनडीए 2 में रामनाथ कोविंद और फिर श्रीमती मुर्मू। हमारे यहाँ तो खासतौर जिस संगठन से मेरा संबंध है वहाँ तो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से राष्ट्रपति जो हेड ऑफ द स्टेट है वो अल्पसंख्यक या वीकर सेक्शन के रहे हैं एंड जम्मू कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया आई बिलीव। पेंशनर्स लिए गए थे जो सीपन ग्राम्स में ड्राफ्ट होते हैं, पोर्टल है, इसके ऊपर इनके सुधार किया गया। आज जॉइंट सेक्रेटरी पेंशन भी यहाँ है। फेस ऑथेंटिकेशन ऐप का कैंपेन भी चलाया गया इसके तहत। और 80 साल के उम्र के ऊपर के जो पेंशनर्स हैं जो 31 अक्टूबर के तक जीवन प्रमाण ऐप लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, उनको कई हज़ारों लोगों को इस कैंपेन के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन इस दौरान दिया गया। डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो पर्सनल विच आर एक्चुअली सोशल रिफॉर्म, उनमें से एक ही है कि पहले होता था कि आपको हर साल अपने आप को उपस्थित करना पड़ता था डॉक्टर के आगे ये प्रमाण देने के लिए कि आप जिंदा हैं। तो हमें ये लगा कि इट्स वेरी इनह्यूमन, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध थी, तो हमने 2015 में ही डिजिटल प्रमाण पत्र शुरू कर दिया कि आप बायोमेट्रिक के माध्यम से। लेकिन अब पिछले 6-8 महीने में ये रिपोर्ट आया कि अब चूँकि नंबर ऑफ पेंशनर्स हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्किंग एंड द लाइफ स्पैन इज गोइंग टुवर्ड्स नाउ 70 एवरेज, आहिस्ता आहिस्ता से 80 हो जाए, तो जो 75-80 के बाद बायोमेट्री भी थोड़ी सी फर्क आ जाता है। तो वी आर दी फर्स्ट आई थिंक इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन जिसने फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की 3 महीने पहले। तो आधार के साथ लिंक कर दिया, वो ऐसे पेंशनर या जो भी एल्डर सिटीजन है मोबाइल में अपना चेहरा देखता है और उसी टाइम उसकी पिक्चर पिकअप हो जाती है उस व्हाट्सएप से और लिंक हो जाती है आधार को। तो बड़ी सुविधा है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो द पॉजिटिव यूटिलिटी ऑफ दिस फेस यूजिंग आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी विच वॉज अर्लियर बीइंग यूज्ड मोस्टली बाय द क्रिमिनल्स। तो लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 में एक स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया था तो उस समय एक नई जागरूकता भी पैदा हुई और पहली बार ऐसा हम सुन रहे थे कि प्रधानमंत्री लाल किले से इसका आह्वान कर रहे हैं और ये देखते ही देखते जन अभियान बन गया। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, प्रधानमंत्री भी समय समय पर मार्गदर्शन करते रहे। जब हमने स्वच्छता का पिछले वर्ष अभियान शुरू किया तो उसके साथ कुछ और भी जोड़ दिया कि कार्यालयों में जो फाइलों का डिस्पोजल था उसको तीव्र गति से किया जाए, जो पेंडिंग ऐसे कागज़ थे जिनकी अभी आवश्यकता नहीं थी उनको किस तरह से निवारा जाए। अब जब तीसरे फेज़ में आए हैं, अब जिसे हम स्वच्छता 2.0 कहा जा रहा है, इस माह अक्टूबर में वो चल रहा है। और साथ ही साथ जो हम आगे बढ़े तो ये भी ध्यान में आया कि केवल फिजिकल स्क्रैप ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप भी बड़ी भारी मात्रा है। कहीं कोई टूटा हुआ कंप्यूटर है, लैपटॉप है तो माउस नहीं है, माउस है तो लैपटॉप नहीं है, कहीं कोई दूसरा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आधा है आधा नहीं है, और उसको उठा के वहीं रख दिया जाता था और रिप्लेस कर दिया जाता है, लेकिन उसका कहीं उसको निवारण किया जाए, कहीं उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, ना इसकी प्राथमिकता थी। तो इससे एक जंक के कारण वो स्पेस भी ऑक्यूपाइड रहती और वो वेस्ट जाता। जब हमने उसका डिस्पोजल शुरू किया तो ये पता चला कि मार्केट में डिस्पोज ऑफ करके जो पिछले वर्ष का अभियान था उसे 62 करोड़ रुपया ARPG विभाग ने स्टेट एक्सचेकर को जमा कराया था। इस बार अभी अभियान में 6-7 दिन बाकी हैं, 31 अक्टूबर तक है, 252 करोड़ रुपया का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और साथ ही साथ भारी मात्रा में स्पेस जो ऑक्यूपाइड स्पेस थी उसको वेकेट किया गया। वहाँ पर कहीं कहीं रेस्टोरेंट बनाया, किसी मंत्रालय ने वहाँ प्रदर्शनी का एक कॉरिडोर बनाया है। तो अलग अलग तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और लाखों स्क्वायर फीट ये एरिया वेकेट हुआ है जो स्पेस में। Thank you.